In last session, we discussed planning file entry, how the MRP run is carried out in background mode, in foreground mode. Then we discussed the planning file entry, NATCH indicator, NATPL indicator. NATCH means any change that can affect the output of the MRP or result of the next MRP run. That is called as net change or MRP relevant change. NATPL is the change that will be effective within the planning horizon. Okay, then today we are going to see the steps that are followed by the system while executing the consumption based planning. So when we run consumption based planning, system executes this step by step. Okay, and there are 5 steps in which system executes this. So an automatic planning run for MRP determines shortage situations and generates the corresponding procurement elements. तो जब भी MRP run होता है, whenever MRP run is there, system determines the shortage quantities and generates the corresponding procurement proposals or procurement elements like planned order, purchase requisition, or scheduling agreement, schedule lines. A planning run consists of following sub-processes. When a planning run runs, there are sub-processes that are executed by the system. So the first sub-process that is executed is the system checks the planning file entries to see whether a material has been changed in some way relevant to MRP and must therefore be included in the planning run. तो सबसे पहले सिस्टम क्या करता है, इट गोज इनटू द प्लानिंग फाइल एंट्री, it goes into the planning file, checks for the materials for which NATCH or NATPL indicator is selected. Only those materials will be selected for next MRP run because उनमें MRP relevant change हुआ है and that can affect the output of the next MRP run. जो मटेरियल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है उसको नेक्स्ट MRP रन में सिस्टम कंसिडर नहीं करेगा. रीजन इज उनका MRP के आउटपुट में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है. सो सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वेस्ट इट्स रिसोर्सेस in carrying out MRP for those materials where there is no change from last MRP run. Clear? Any doubt? ठीक है. The second sub process is the system carries out net requirements calculation for every material. तो प्लांट में अगर हमने प्लांट लेवल पे रन किया तो हर एक मटेरियल का सिस्टम क्या करेगा, नेट रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करेगा, शॉर्टेज क्वांटिटीज कैलकुलेट करेगा. The system checks whether a requirement quantity is covered by available warehouse stock and fixed receipts from purchasing or production. If a requirement quantity is not covered, the system creates a procurement proposal. So system will check कि existing stock, that is my warehouse stock plus on order stock like purchase order quantity, purchase requisition quantity or fixed plan order quantities falls below your reorder point. If it falls below your reorder point, then a shortage quantity is calculated based on the lot size. If not, no shortage quantities are determined. Third sub process is the system subsequently carries out a lot size calculation. जैसे ही shortage quantity का पता चलता है कितना ऑर्डर करना है, सिस्टम लॉट साइज को देखता है कितने क्वांटिटी में सप्लायर को ऑर्डर करना. The calculation considers lot sizing procedures and any further restrictions such as rounding defined in the material master. तो जैसा मटेरियल मास्टर में हमने लॉट साइज मेंटेन किया है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट क्वांटिटी को सिस्टम स्प्लिट करेगा एज पर दी लॉट साइज.
The system calculates the release and delivery dates for purchase requisitions and start and end dates for the planned orders. The next sub process is determining the availability dates. कौन सी डेट को मटेरियल हमारे प्लांट में आने वाला है. फॉर दैट वी हैव सीन फॉरवर्ड शेड्यूलिंग. ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट है, सप्लायर से मटेरियल लेने वाले हैं, तो सिस्टम डिलीवरी डेट कैलकुलेट करेगा. और अगर प्लान्ड ऑर्डर बना है, इन हाउस प्रोडक्शन होना है, तो उसका प्रोडक्शन ऑर्डर का फिनिश डेट सिस्टम कैलकुलेट करता है. When scheduling externally procured materials, replenishment lead time is used as the basis to determine dates for delivery and replenishment. During the forecast-based planning, the delivery replacement dates are determined using backward scheduling. Okay. And then fifth point, the last step, last sub-process is the system determines the type of procurement proposals. Planned order बनाना है, परचेज रिक्विजिशन बनाना है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइंस बनाना है, ये सबसे लास्ट में डिसाइड करता है सिस्टम. And for that, system uses the procurement type. The procurement type is checked in the material master record. That is, system checks whether the receipt is to take place as a result of in-house production or external procurement. हम सप्लायर से लेने वाले हैं या हमारे प्रोडक्ट प्लांट में प्रोडक्शन होने वाला है. If the procurement type is in-house production, the system creates planned order. तो अगर हमारे ही प्लांट में वो बनना है तो उसके लिए planned orders बनेंगे. In the case of external procurement, system creates planned orders, purchase requisitions or schedule lines according to the settings. तो external procurement में depend करता है, हमको जो चाहिए वो हम बना सकते हैं. When using a source list or quota arrangement, the system attempts to determine a source of supply and allocates this source to the procurement proposal. ये हम source determination chapter में देखेंगे कि source list या quota arrangement का use करके हम PR को ऑटोमेटिकली वेंडर असाइन कर सकते हैं. After a planning run, the MRP controllers can check and edit the new procurement proposals. तो प्लानिंग रन होने के बाद MRP के जो कंट्रोलर्स होते हैं, they are authorized to edit the quantities if they want. So the first step is planning file entry. प्लानिंग फाइल एंट्री में सिस्टम चेक करता है जो मटेरियल्स के अगेंस्ट NETCH या NETPL इंडिकेटर मार्क्ड है, वही मटेरियल्स को प्लानिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है. देन सेकेंड स्टेप में सिस्टम क्वांटिटीज कैलकुलेट करता है, कितना शॉर्टेज है. थर्ड स्टेप में सिस्टम कैलकुलेट करता है लॉट साइज, कितने की क्वांटिटी में सप्लायर को ऑर्डर करना है. फोर्थ स्टेप में सिस्टम डेट्स कैलकुलेट करता है. फिफ्थ स्टेप में सिस्टम डिसाइड करता है कि प्लान ऑर्डर बनना है या परचेस रिक्विजिशन बनना है. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? समझते हैं? यस और नो? सर ठीक है, ये NETCH NETPL समझ में आया? लास्ट लेक्चर को वापस एक बार देख लेना. ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस पार्ट. ओके, सो प्लांट NETCH इंडिकेटर. ठीक है, so any change on that material, may it be a goods receipt, may it be a goods issue, may it be a creation of purchase requisition, creation of purchase order, change of purchase requisition, change of purchase order, creation of sales order. So any change with respect to that material that is going to affect the result of MRP for that material is called as NETCH indicator. NETPL indicator is
net change in planning horizon. Now we will discuss what is planning horizon, and then NEUPL is regenerative planning. ठीक है, तो नेट चेंज प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो मटेरियल में कोई भी चेंज हो उसको सिस्टम कंसिडर करता है। NETPL में ऐसे ही मटेरियल्स को सिस्टम करेगा जिसका प्लानिंग होराइजन के अंदर चेंज है। और थर्ड, इसमें सिस्टम NETCH भी चेक नहीं करेगा, NETPL भी चेक नहीं करेगा, सारे मटेरियल के लिए MRP रन कर देगा। नाउ फॉर दैट लेट अस गो टू प्लानिंग फाइल एंट्री, एग्जीक्यूट द प्लानिंग फाइल एंट्री। अभी इसमें कितने मटेरियल्स हैं? 5 मटेरियल्स हैं, ठीक है। 5 में से कितने मटेरियल के सामने NETCH और NETPL है? दिस इज NETCH एंड दिस इज NETPL। तो दो मटेरियल के सामने NETCH और NETPL सिलेक्टेड है। तो अगर हम प्लांट लेवल पे इसका MRP रन करते हैं तो MD01, so if we run MRP at plant level, if you select NETCH indicator, तो ये दो मटेरियल का ही MRP रन होगा, बाकी के 3 मटेरियल का नहीं होगा, बिकॉज बाकी के 3 मटेरियल में ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनका लास्ट MRP का जो आउटपुट है वो चेंज होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको दोनों कंपेयर करके दिखाए थे। नाउ अगेन वी विल रन एनी MRP विथ NETCH। ओके, अभी इसको रन करेंगे तो क्या होगा? ये दो मटेरियल का MRP रन होगा, बाकी के 3 का नहीं होगा। लेट मी एग्जीक्यूट इट। प्लानिंग मोड, आई विल सेलेक्ट 3 हियर, एंटर। नाउ सी, कौन से मटेरियल का MRP रन हुआ? मटेरियल्स प्लांट, 2 मटेरियल्स आर प्लांट, 2 मटेरियल का MRP रन हुआ। कौन सा है? 46 एंड 028। कम हियर एंड चेक 028 एंड 46, ये दो ही मटेरियल का MRP रन हुआ, बाकी के 3 मटेरियल का MRP रन नहीं हुआ, बिकॉज उनके सामने NETCH इंडिकेटर सिलेक्टेड नहीं था। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, system will reset this NETCH and NETPL indicators. Refresh it. Now you see system ने उसको delete कर दिया। So whenever MRP run takes place, जब भी MRP run start होता है, सबसे पहले सिस्टम प्लानिंग फाइल में आता है, वहां से मटेरियल सिलेक्ट करता है कौन से मटेरियल का MRP रन करना है। तो यहाँ पे सिस्टम ने दोनों मटेरियल्स को सिलेक्ट किया, एंड वंस इट सिलेक्ट्स द मटेरियल्स, द नेक्स्ट स्टेप इज इट डिलीट्स दिस इंडिकेटर्स। इसके सामने जो X मार्क किया था NETCH और NETPL, वो दोनों को सिस्टम ने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट करता है सिस्टम? बिकॉज नेक्स्ट MRP रन में, नेक्स्ट टाइम जब हम MRP रन करेंगे तो अगेन कौन से मटेरियल सिलेक्ट करना है, उसके लिए सिस्टम के पास यही दो इंडिकेटर्स। तो जिस मटेरियल में भी आप चेंज करोगे, जिस मटेरियल में भी चेंज होगा, उसके सामने वापस ये X इंडिकेटर सेट करेगा। वापस आप MRP रन करोगे, उसको डिलीट कर देगा। बाद में उसमें कोई चेंज होगा, अगेन ये इंडिकेटर सेट होगा। सो दिस इज हाउ दिस प्लानिंग फाइल एंट्री इज यूज्ड। ठीक है, अभी ये MRP रन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जब MRP रन होगा तो कौन से मटेरियल सिलेक्ट करना है, उसके लिए वापस यही इंडिकेटर का सिस्टम यूज करता है। तो जैसे किसी मटेरियल में चेंज होगा, MRP रिलेवेंट चेंज होगा, उस मटेरियल के सामने वापस ये इंडिकेटर सेट होगा। Clear? Understood? Now, if I go back and try to run the MRP again at plant level, कितने मटेरियल्स का प्लानिंग होगा? यस, कितने मटेरियल्स का प्लानिंग होगा अभी? कितने मटेरियल्स का MRP रन होगा अभी? 2 मटेरियल का सर। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 ही मटेरियल का हम MRP। तो लास्ट टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट MRP रन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट MRP रन जब हम करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे आएगा प्लानिंग फाइल एंट्री में, और यहाँ पे NETCH चेक करेगा किसी के सामने सिलेक्टेड है।
नहीं। तो किसी का भी एमआरपी रन नहीं होगा अभी। ठीक है, रन इट, सी, ओके। नो मटेरियल्स प्लान्ड। क्यों नहीं प्लान किया? बिकॉज यहाँ पे हमने NETCH दिया है इनपुट में। NETCH यहाँ पे किसी के सामने सेट है क्या? नहीं है, तो नहीं करेगा। चेक इट विथ NETPL। NETPL है क्या किसी के सामने प्लानिंग फाइल में? नहीं है, नो NETPL इंडिकेटर इज सेट। कोई भी मटेरियल प्लान नहीं होगा, नो मटेरियल्स प्लान्ड। थर्ड ऑप्शन, चेक NEUPL। होगा क्या? नहीं होगा सर। होगा, बिकॉज NEUPL इज रीजनरेटिव प्लानिंग। ये चेक नहीं करता है कि मटेरियल पे लास्ट MRP रन के बाद कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे पांचों मटेरियल का प्लानिंग हो, ऑल मटेरियल्स आर प्लान irrespective of NETCH or NETPL indicator। क्लियर? नहीं समझ में आया तो बोल दो, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेट सर एक चेंज, बार बताओ ना। हाँ, फ्रॉम लास्ट MRP रन। ऐसा कोई भी चेंज जो मटेरियल मास्टर पे हुआ है आफ्टर लास्ट MRP रन, दैट चेंज इज कॉल्ड एज NETCH। ओके, तो MRP रिलेवेंट चेंज में क्या 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 आता है? आपका मटेरियल मास्टर चेंज होगा, आपने कोई PR क्रिएट किया, चेंज किया, डिलीट किया, PO क्रिएट किया, चेंज किया, डिलीट किया, प्लान्ड ऑर्डर क्रिएट किया, चेंज किया, डिलीट किया, सेल्स ऑर्डर बनाया उस मटेरियल के अगेंस्ट में। तो उस मटेरियल के अगेंस्ट में जो भी गुड्स मूवमेंट होगा, गुड्स रिसिप्ट हुआ, गुड्स इशू हुआ, ये सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड एज MRP रेलेवेंट चेंज। तो इसमें से कुछ भी अगर मटेरियल के साथ होता है तो उसकी वजह से MRP का आउटपुट चेंज हो सकता है। तो अभी हमने जैसे MRP रन किया, ठीक है, ये हमारा MRP रन कंप्लीट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज लास्ट MRP रन। तो जो भी हमारा लास्ट MRP रन है, उसके बाद में अगर मटेरियल मास्टर में ऐसा कोई भी चेंज होता है जिसकी वजह से उसके MRP के आउटपुट को इम्पैक्ट होगा, ऐसे चेंज को हम NETCH बोलते हैं। एंड व्हेन वी रन MRP यूजिंग प्रोसेसिंग की NETCH, तो ऐसे ही मटेरियल्स जिनके लिए NETCH इंडिकेटर प्लानिंग फाइल में सेट है, वही मटेरियल्स को सिस्टम MRP में सिलेक्ट करता है। नाउ मैं ये पहला मटेरियल ले लेता हूं, इसके अगेंस्ट में एक PR बना लेता हूं। सो क्रिएशन ऑफ अ परचेस रिक्विजिशन इज अ MRP रेलेवेंट चेंज। क्यों MRP रेलेवेंट चेंज है ये? यस, टेल मी व्हाई इट इज अ MRP रेलेवेंट चेंज। बिकॉज हमने देखा है कि अगर कोई परचेस रिक्विजिशन क्रिएटेड है तो सिस्टम उसको अवेलेबल स्टॉक में कंसीडर करता है, उसके क्वांटिटी को। कोई प्लान्ड ऑर्डर है या कोई परचेस ऑर्डर है, तो उसका क्वांटिटी आने वाला है, रिसीव होने वाला है, इसलिए सिस्टम उसको क्या करता है? सिस्टम उसको अवेलेबल क्वांटिटी में कंसीडर करता है। वेयर हाउस स्टॉक प्लस ऑन ऑर्डर स्टॉक, तो ये ऑन ऑर्डर स्टॉक है। So as soon as you created this PR, and if you refresh this planning file entry, this NetCH indicator is selected here. NETCH भी selected है because
प्लानिंग होराइजन में भी, प्लानिंग होराइजन भी कहीं पे तो मेंटेन्ड है, और ये जो चेंज है, ये जो पीआर हमने बनाया वो विद इन प्लानिंग होराइजन आ रहा है, इसके लिए ए बी सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर अभी हम एमआरपी रन करेंगे, वापस से हम प्लांट लेवल पे एमआरपी रन करेंगे, तो कितने मटेरियल्स का एमआरपी रन होगा अभी? यस, अगर मैं NATCH के साथ एमआरपी रन करता हूं प्लांट लेवल पे, तो कितने मटेरियल्स का एमआरपी रन होगा? वन। सर जिसको इंडिकेटर लगाए उसका ही होगा ना? करेक्ट, यस, एक ही मटेरियल का होगा। तो 5 में से हमने एक को चेंज किया है, इस पे NATCH अप्लाई हो गया, तो NATCH के साथ करेंगे तो इसी एक मटेरियल का एमआरपी रन होगा। टेस्ट इट। यहाँ पे NATCH सिलेक्टेड है, प्लानिंग मोड में 3 सिलेक्ट करो, करो एंटर। सी, एक ही मटेरियल प्लान हुआ 26। वापस आओ प्लानिंग फाइल में, 26, ठीक है, इसी मटेरियल का एमआरपी रन। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो सिस्टम ने इसको डिलीट कर दिया है। रिफ्रेश इट, डिलीटेड। क्यों डिलीट कर दिया? नेक्स्ट एमआरपी रन में उसको कंसिडर नहीं करना है या नहीं करना है, उसके लिए अगेन यही इंडिकेटर होगा। जैसे ही वापस कोई इस पे चेंज होगा, सिस्टम इसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, वापस इसमें चेंज करते हैं। अभी इसी पीआर को मैं डिलीट कर देता हूं। अभी डिलीशन ऑफ परचेस रिक्वेजिशन इज आल्सो अ एमआरपी रेलेवेंट चेंज। ठीक है, ये भी एमआरपी रेलेवेंट चेंज है। क्यों है बताता हूँ। अभी इसका पहले MD04 में या MD05 में लास्ट एमआरपी का हम आउटपुट देखते हैं। क्या आउटपुट है? सिस्टम बोल रहा था कि एक परचेज रिक्वेजिशन है 2000 का, और एक 3000 का पीआर बना था। ठीक है, इसका ये क्या है देख लो, 5000 का रीऑर्डर पॉइंट है। अवेलेबल स्टॉक कितना है? 0 है। तो 5000 का रिक्वायरमेंट जनरेट होना था, उसमें एक मैनुअल पीआर हमने बनाया था जो कि 2000 का था, और वो ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव हो रहा था। तो सिस्टम ने 3000 का एक पीआर बनाया एमआरपी के। तो क्लियर है? अभी हमने क्या किया, इस पीआर को ही डिलीट कर दिया। तो वापस रन करेंगे एमआरपी, तो 5000 का रिक्वायरमेंट जनरेट होगा। तो ये जो 3000 का पीआर बन रहा है वो 5000 का बनेगा, क्योंकि अभी ये पीआर तो डिलीटेड है, तो इसको सिस्टम कंसिडर नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एमआरपी रेलेवेंट चेंज। क्लियर? तो अभी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो इसके सामने NATCH इंडिकेटर वापस सेट हो गया। वापस एमआरपी रन करेंगे तो सिर्फ इसी मटेरियल का एमआरपी रन होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस NATPL। अगर मैं यहाँ पे NATPL यूज करके एमआरपी रन करूंगा, NATPL, ठीक है, तो भी एक ही मटेरियल प्लान होगा, इसी मटेरियल का एमआरपी रन होगा, क्योंकि इसके सामने ये NATPL इंडिकेटर सेट है। तो अगर हमने NATCH इनपुट दिया है यहाँ पे प्रोसेसिंग की में, तो NATCH को चेक करेगा सिस्टम। अगर हमने NATPL दिया है तो NATPL देगा। तो NATCH और NATPL ये दोनों इस मटेरियल के लिए सिलेक्टेड है, तो NATCH से जाए या NATPL से जाए, इस मटेरियल का एमआरपी रन होगा। तो NATPL से इसको रन करते हैं, एक मटेरियल का प्लानिंग हुआ। ठीक है, वापस इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको सिस्टम ने डिलीट कर दिया NATPL इंडिकेटर। ठीक है, तो जब भी आप एमआरपी रन करते हो, जब भी आप एमआरपी रन करते हो, तो जैसे ही एमआरपी रन स्टार्ट होता है, सिस्टम प्लानिंग फाइल से मटेरियल को सिलेक्ट करता है और उसके इमीडिएट बाद उस इंडिकेटर को जो है वो रीसेट कर देता है, क्योंकि नेक्स्ट एमआरपी रन में उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है, उसके लिए
यही इंडिकेटर सिस्टम को यूज करने हैं। ठीक है। नाउ what is difference between NETCH and NATPL? That is important. NETPL, नेट चेंज। ठीक है। नेट चेंज मतलब ऐसा कोई भी चेंज जिसकी वजह से एमआरपी के आउटपुट में चेंज आ सकता है, देन उसके लिए तो NETCH है। तो NETPL इज नेट चेंज इन प्लानिंग होराइजन। ऐसा कोई भी चेंज that can affect the output of my MRP, but within the planning horizon. Now, what is planning horizon? Suppose I am planning for next 30 days. मैं जो मेरा प्लानिंग करता हूँ वो सिर्फ अगले 30 दिन का करता हूँ। सो माई प्लानिंग होराइजन इज 30 डेज। ठीक है। सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ राइस इन 1 month। सो आई एम प्लानिंग फॉर अ मंथ 30 डेज। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइस कंजम्पशन इन 1 month। सपोज एक फैमिली है और उनका राइस का कंजम्पशन जो है पर मंथ दैट इज 5 kg। सो मैं आज अगर प्लान कर रहा हूं नेक्स्ट 1 मंथ का, अगले 30 दिन का, तो बेस्ड ऑन माय कंजम्पशन आई एम प्लानिंग फॉर 5 kg। ठीक है। क्लियर। तो मेरा प्लानिंग होराइजन क्या है? 30 दिन का है। नाउ सपोज आई क्रिएटेड अ PO और अ PR। एग्जाम्पल में थोड़ा ले सकते हैं। चलो ठीक है। ठीक है। मेरा मंथली कंजम्पशन जो है 5 kg है। 30 दिन के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ, हर महीने का मैं प्लानिंग करता हूँ। नाउ सपोज मैंने क्या किया, अमेजोन पे एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है। 3 kg राइस। ठीक है। 3 kg राइस का मैंने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी क्या, अभी सपोज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ। आज मंथ का स्टार्ट है और आने वाले 30 दिन के लिए उस फैमिली को 5 kg का राइस लगता है। ठीक है। सो टुडे दे आर गोइंग टू परचेज 5 kg राइस। अभी राइस जब वो परचेस करने जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी अमेजोन पे एक ऑर्डर प्लेस्ड है उनका। कुछ ऑफर चल रहा था और उन्होंने अमेजोन पे एक ऑर्डर डाल दिया था। कितने? 3 kg राइस का। और उसका जो डिलीवरी डेट है, वो डिलीवरी डेट है आज 12/10 है। ठीक है। उसका डिलीवरी डेट है 22/10/23।
ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? एक फैमिली है, उनका मंथली कंजम्पशन है राइस का 5 kg। ठीक है, आने वाले 30 दिन के लिए उनको 5 kg का राइस लगने वाला है। आज वो राइस परचेस करने जा रहे हैं, बट राइस परचेस जब वो करने जा रहे हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि ऑलरेडी अमेजोन पे एक 3 kg राइस का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसका डिलीवरी डेट है आज से लेके 10 दिन के बाद, राइट, विच इज विद इन देयर प्लानिंग होराइजन। वो उनके 30 दिन के प्लानिंग होराइजन के अंदर आ रहा है, करेक्ट। सो हाउ मच क्वांटिटी दे शुड परचेस, वो कितना क्वांटिटी वो परचेस करना चाहिए? 2 kg। 2 kg, राइट, बिकॉज 3 kg जो है वो 10 दिन के बाद आने वाला है, तो मंथली जो रिक्वायरमेंट है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगर यही 3 kg का जो उनका ऑर्डर है ये नेक्स्ट 30 दिन के बाद आता, 25/11/23 को आता, तो ये डेट क्या है? दिस डिलीवरी डेट इज आउटसाइड ऑफ देयर प्लानिंग होराइजन। उनके 30 दिन का जो प्लानिंग है उसके बाद ये राइस डिलीवर होने वाला है। तो आज जब वो ऑर्डर करने जाएंगे तो कितना ऑर्डर करेंगे, कितना लेके आएंगे मार्केट से? सी, कितने दिन का प्लानिंग कर रहे? 30 दिन का। आज वो निकले परचेस करने के लिए, उन्होंने नोटिस किया कि एक ऑर्डर ऑलरेडी 3 kg का प्लेस है, बट वो कब आने वाला है? 25 नवंबर को आने वाला है। मेरा प्लानिंग कब तक का है? 12 नवंबर का। आज से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 30 दिन। आज 12 अक्टूबर है, तो 12 नवंबर तक का मेरा प्लानिंग है 5 kg का, और ये 3 kg मुझे कब आने वाला है? 25 नवंबर, आउटसाइड ऑफ माई प्लानिंग होराइजन। तो उसको कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो मार्केट से 2 kg लेके आएंगे तो 10 दिन बाद जाके उनको वापस 3 kg परचेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो ये महीने में रिसीव होने वाला नहीं है ना। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर? 5 kg उनको ऑर्डर करना पड़ेगा। व्हाट इज प्लानिंग होराइजन? जितने दिन का मैं प्लानिंग कर रहा हूं उस दिन के अंदर अगर वो चेंज इफेक्टिव है तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज नेट चेंज इन प्लानिंग होराइजन। तो ये जो पीओ है, अगर मैंने ये पीओ बनाया है, अमेजोन को मैंने ये पीओ दिया है, इस पीओ का डिलीवरी डेट अगर मेरे प्लानिंग होराइजन के अंदर है तो सिस्टम उसको NETPL सिलेक्ट करेगा, बिकॉज दैट फॉल्स इन माय प्लानिंग होराइजन। और अगर मेरे पीओ का डिलीवरी डेट आउटसाइड ऑफ प्लानिंग होराइजन है, जितने दिन का मैं प्लानिंग कर रहा हूं उसके बाद अगर वो डिलीवर होने वाला है, तो वो मेरे उतने दिन के प्लानिंग में बैठता नहीं है। तो दैट चेंज इज NETCH, नॉट NETPL। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन NETCH एंड NETPL? तो जब भी आप चेंज करते हो दैट इज NETCH, बट वो NETPL कब बनेगा? अगर वो चेंज आपके प्लानिंग होराइजन के अंदर आता है तो। व्हाट इज प्लानिंग होराइजन? आप कितने दिन का प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग होराइजन। तो कंपनी में अगर आपने कहीं पे काम किया है तो यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस थिंग्स कि मटेरियल्स का, हर एक मटेरियल का प्लानिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं 3 महीने का प्लानिंग होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं 6 महीने का प्लानिंग होता है। तो 6 महीने का प्लानिंग मतलब क्या? आने वाले 6 महीने में मुझे कितना मटेरियल लगने वाला है उसका प्लानिंग मैं आज ही कर लेता हूँ। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 6 महीने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें से 3 महीने का प्लान जो है वो कंफर्म होता है, और 3 महीने का जो होता है टेंटेटिव होता है।
तो जैसे जैसे मंथ आगे जाते हैं वैसे वैसे वो प्लान आगे चला जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग होराइजन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू आर प्लानिंग। तो अगर ऐसा कोई चेंज है जो प्लानिंग होराइजन के अंदर आता है तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज NETPL, नेट चेंज इन प्लानिंग होराइजन। ऐसा कोई चेंज है जो प्लानिंग होराइजन के बाहर आता है तो दैट इज NETCH। लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये क्या है, NETCH है, इसको NETPL सिलेक्टेड नहीं है। नाउ लेट अस चेक द प्लानिंग होराइजन फर्स्ट। OM-I8 जहाँ पे हमने प्लांट पैरामीटर्स मेंटेन किए थे, तो प्लांट पैरामीटर्स में प्लानिंग होराइजन होता है, ये मैंने आपको बोला था कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्लानिंग होराइजन देखोगे तो यहाँ पे 100 एंटर्ड है। सो दिस 100 इज नथिंग बट 100 डेज। तो अगर हम आज प्लानिंग कर रहे हैं तो आज से लेके नेक्स्ट 100 डेज का प्लानिंग होराइजन है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 0 होगा तो इट मीन्स नो प्लानिंग होराइजन, हम प्लानिंग होराइजन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मटेरियल पे चेंज करते हो, लेट अस चेंज दिस मटेरियल, इसका PR बनाते हैं Me51N। PR बनाओ, PO बनाओ, कुछ भी बनाओ, दैट इज MRP रिलेवेंट चेंज। तो ये मैंने PA11 प्लांट में इसको बनाया, सेव किया। नाउ सी, सिर्फ NETCH इंडिकेटर सिलेक्ट हो रहा है, NETPL नहीं हो रहा है। पहले दोनों हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि प्लानिंग होराइजन मेंटेन किया था। कितना मेंटेन किया था? 100 डेज का मेंटेन किया था। और हमारा डिलीवरी डेट जो था वो आज का ही था, इसलिए वो NETPL इंडिकेटर भी उसको सिलेक्ट कर रहा था। अभी उसने सिर्फ NETCH किया बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग प्लानिंग होराइजन। अभी प्लानिंग होराइजन को एंटर करते हैं, 100 डेज सेव किया। अभी और एक PR बनाते हैं, 500 क्वांटिटी का, ये 11। डिलीवरी डेट पे ध्यान देना, 30/10/2023। सेव इट, डिस्प्ले द परचेज रिक्विजिशन। NETPL इंडिकेटर सेट होगा या नहीं होगा? अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो NETPL इंडिकेटर सेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?